ये गार्डन साथ में आइए, साथ मैम में मैम 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 यहाँ पे आइए। बस मैम वहीं पे क्लियर अरे बहुत साइड में क्लियर ऑल ऑफ यू मैम राइट साइड अरे अंकल मैम राइट साइड से क्लियर मैम यहाँ पे देखो, अंगना जी क्या गंगा जी सोलो। मैडम इधर मैडम मैडम नहीं, नहीं, इधर इधर गंगा मैम इधर इधर। अरे सोलो सोलो नहीं इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर है। सेंटर में यहाँ पे गंगा जी सोलो फोटो खिंचवा। गंगा जी सोलो गंगा जी सोलो। मेरा नाम आदि है और मैं आप सबको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी मम्मी दिन में 50 बार मुझे आई लव यू बोलती है और फिर बोलती है वापस बोलने को, और अगर नहीं बोला तो जैसे प्यार कम हो जाएगा। और फिर पापा, वो तो खुद मम्मी से इतना डरते हैं, इतना तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी नहीं डरता। वैसे मेरी फैमिली में मेरी नानी भी है, पर आज वो यहाँ हम सबके साथ नहीं है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, आज वो यहाँ आ नहीं पाई। उनकी शायद से कोई किट्टी पार्टी होगी, पर लेकिन उन्होंने हम सबके लिए लड्डू भेजे हैं। आप भी ज़रूर खाना, मम्मी के लड्डू से भी ज़्यादा टेस्टी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फैमिली। आई थिंक 2 साल के बाद मिल रही हूँ वापस यहाँ। मुझे आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, सो व्हेन माय वर्ड्स आर I've never been so nervous right now. So ये है नीलबटे और बरेली के बाद पंगा. It's almost my heart which has gone into this film, as a mother, as a director, as a human being, and someone who just wants to keep saying stories which can resonate to all of you all, and hope you'll like it. And this is it. This is my heart out there. So thank you so much. I have had a wonderful, wonderful actors with me who have worked with me for the past 2 years. Undoubtedly, Kangna is one of my dearest friends now. And I don't think so anyone else could have played the role of a mother as beautiful as her, getting the insights. Jo could have not come if you have not lived and seen that. The new heartthrob, Jussie Gill, who is just himself in the film. Innocence of Jussie is really nice, and he has really supported me to get me the vision out there. And then we have the little boy Yagya, who doesn't like to be called a child actor, but he is our their little son. ऐसा हो गया था कि जब बहुत गुस्सा आता था सेट पे तो मैं उसको जोर से अरू बुलाती थी, which is my son's pet name. तो सब सेट पे बहुत हंसते थे कि अरू जल्दी ठीक से करो ये चीज़ को. But his name is Adi, and most importantly now I want to call someone, because of them I'm here, because of them I could take Panga, and because of them I could make this. So Rucha, thank you so much. Shikha, thank you so much. Vijay sir, please come. Because of them we could make this film. Vijay sir, please. Yeah. Media friends, thank you once again for being here. I mean, just seeing all of you here makes, my heart kind of sing itself. So I know we bring you lots of films, but you have to believe me when I say that this is a film which comes straight from my heart. And it's a film which I feel really, really proud of for three really good reasons. Number one,
This film is a story, a film about each one of us. आपकी family की story है, मेरी family की story है, और ये सब family की story हैं. और इस film में you will see कि जो middle class dreams होते हैं, जो middle class challenges होते हैं, how they come alive and how they are overcome by really ordinary people with really good hearts. So number one, that's one thing. The second is, this film has been put together, and I truly believe, with India's finest talent. And you're seeing them here. And let me just tell you about some of them. Let's start with Jassi. I remember when we were having these discussions in the early days and about casting and all of that. And Ashwini and I were convinced that we have to go for somebody who's a fresh face, who actually is young and is the kind of aspirational husband, father that would represent middle class India. And he really, really has done it to perfection. Ashwini, what can I say? I mean, everyone knows what a hugely talented. Guys, give her a big round of applause. Hugely talented, and her energy can actually set a room on fire. I mean, she is infectious. She has a great smile, besides the great talent. And today she's nervous, but I've never seen her like this. So even I'm coping with this whole new emotion. And finally, I want to speak of Kangana. She is one of the best actresses in India. And guys, give her a round of applause. And I can tell you, as a studio, we've done lots of films. And I've been telling Rucha and my team, when are we going to do a film with Kangana? When are we going to do a film with Kangana? So this has been a personal dream also for us, and really honored that this film is with this team. And this young kid, my God, how much of, if anyone wants a son like this, he's available, his parents are here, can we borrow him on weekends? And we'll send him back to you on weekdays. But really, you're fantastic. You really are. Thank you. So that's the second reason. And there's one more reason. This film has been created, its idea, etc., came from our in-house creative team. So Rucha and her team came up with the idea, and a big round of applause for that. And then they traveled to all the kabaddi matches across the country. They spoke to kabaddi players, men, women, and stories that, that came from their life. And this film represents a story that was taken out of real people's lives. And then they brought it to Ashwini, and of course, then she put her magic to it. And a terrific script came out of that. And then the rest is all here for you to see. So guys, once again, for my sake, give this very talented team a really big round of applause. And we're going to open any question and answers that you guys have. One second, you'll have to go. On your left, Kangana. On your left, here. हाँ जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. द फिल्म टचेस द हार्ट. मेरा सवाल आपसे ये है, कंगना, पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा? बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे, एंड आपने भी पंगे बहुत लिए हैं इस यहाँ तक आने के लिए. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं. जब आपकी पर्सनालिटी उससे रेजोनेट करती है. मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इज़ लाइक एन ओपन बुक. और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ. और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द स्टेटस को. एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर. But I personally feel it is a story that is very close to Ashwini ma'am, and I feel that ये इन्हीं की कहानी है. कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है because ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी. it's a metaphor for any dream. ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले ज़िंदगी में, स्पोर्ट्स ही करें. कोई भी एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक. और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है. तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी, क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा. तो ये इन्हीं की कहानी. मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये.
कंगना जी कंगना हेलो कंगना जी नमस्कार। रेखा खान नवभारत टाइम्स से। हाय रेखा जी। जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है। बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं। आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती हैं। कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं। एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड। तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल। आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है। अगर नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है। दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड। अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है। सो ऑल आई वांट टू टेल द वुमेन दैट लुक इनटू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं। आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज़ हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर। कंगना ऑन योर लेफ्ट। कंगना जी आप फीमेल Sorry, just one सिक्योरिटी second. I just want to invite Shankar and Lloyd, please, who has done the music. अश्विनी जी रेखा खान आपसे सवाल है। आपकी रेखा खान, पिछली कैसे हो आप? बस मैं अच्छी हूँ। आपकी पिछली 2 फिल्में भी बहुत कमाल की रही हैं और उसको मतलब अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी मिले हैं और क्रिटिक अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, दर्शकों ने भी बहुत सराहा। ये भी एक स्लाइस ऑफ लाइफ और उसी तरह की लग रही है। तो किस तरह से इस फिल्म को आप कैसे देख रही हैं, दर्शकों के नज़रिए से, पुरस्कार के नज़रिए से, और एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? दर्शकों की नज़रों से तो मैं पिक्चरें ऐसे बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ पिक्चर ही ना रहे, सिर्फ एक फिल्म ना रहे, पर वो आर्काइवल हो जाए। आई ऑलवेज फील दैट वॉट एवर फिल्म आई मेक शुड बी मेड फॉर द आर्काइव्स। कि भले ही 5-6 फिल्मों के बाद मैं रिटायर करूँ या मैं 100 साल की हो जाऊँ या मैं जिंदा ऊपर चली जाऊँ, फिर भी लोगों को मेरी पिक्चर याद रहनी चाहिए। अवार्ड्स का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये है कि मेरी अवार्ड सबसे अच्छी होती है जब ऑडियंस को अच्छी लगती है, जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि उनको बहुत छू लिया किसी मेरी स्टोरीज ने। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। Kangna, towards your left here. First of all, congratulations to the entire team. The trailer is really good and inspiring. कंगना, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो है एक कहीं ना कहीं आप एक कबड्डी प्लेयर जो है वो प्ले कर रही हैं और आपके मेरे ख्याल से फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रामा पे फिल्म है जो ये है, तो किस तरीके का फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन किया आपने फॉर योर कैरेक्टर? एंड देन आई विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आई हैव नेवर बीन इनटू स्पोर्ट्स ग्रोइंग अप आल्सो, सो मेरे लिए काफ़ी ये नई चीज़ थी कबड्डी। आई बीन अ साइंस स्टूडेंट और मैं बचपन में भी आई वॉज लॉट इनटू पोइट्री। जब मैं 10-12 साल की थी दैट टाइम आई यूज्ड टू रीड हरिवंश राय बच्चन एंड मुंशी प्रेमचंद्र एंड ऑल दैट। सो आई हैव नेवर बीन अ स्पोर्टी किड, but because I've done so many action characters, I've done like I played a superwoman, I played a warrior, so that helped me a lot because essentially it's a very physically draining role. But like any other character, I had to learn kabaddi and I had to understand a mother's world and what her responsibilities are, what her perspective is.
Kangna, the second question is you have always been vocal about whatsoever has been asked. तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाल ही में जो फोर्ब्स लिस्ट है उसको लेकर के भी जो आपकी सिस्टर हैं वो काफ़ी नासाज नाखुश लगी मुझे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी अबाउट द आई रैंकिंग एंड थिंक सबसे पहले तो आई थिंक ये जो इस तरह से एक किसी का भी नाम लेके और किसी के भी मतलब पर्सनल, चाहे वो इनकम हो या मेरी पर्सनल लाइफ, उस पर कमेंट करना विदाउट एनी रिलायबल सोर्सेज इज़ नॉट गुड. आई डोंट थिंक इट इज़ गुड. इफ़ दे वांट टू, आई थिंक, मेक अ लिस्ट, दे मस्ट मेक अ लिस्ट हु contributed how much to the society, not how much they extracted from the society, you know. There should not be a rut for that. So I think we all have to consciously take responsibility. We always keep thinking why celebrities are not setting new standards, but even journalism should take responsibility of how we can make this society where people think about contributing to the society and not extracting from it. कंगना जी आपके राइट में, हाय कंगना जी, यू नो ऐसे और कौन कौन से आपके सपने हैं जिसके लिए आपको आपकी सोसाइटी से एंड आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और भी पंगा लेना है और अपने उस सपने को पूरा करना है? वेल आई थिंक जब मैं फिल्मों में आई थी तो मुझे उस टाइम पे जो फिल्म की हीरोइनों की जो कंडीशन थी वो देख के काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज आई नेवर वुड वांट टू फील के somebody हैज़ टू डिसाइड एंड डिक्लेयर माई डेस्टिनी. हम लोग लड़कियां जो हैं लड़कों के ही जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको वही 29-30 साल की उम्र में एक वो सस्पेंडेड लेटर दे दिया जाता है दैट यू नो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी काइंड टू द फाइन लाइन्स इन योर फेस, you know, it wrinkles are frowned upon, gray hair is frowned upon, your growth of your intellectual growth or your personal growth as a woman is frowned upon. तो ये देख के मुझे काफ़ी फ्राइटनिंग लगा कि आई विल ऑल्सो गेट अ सस्पेंशन लेटर एट द एज ऑफ 28-29. So maybe I want to quit, but on my own. I do not want anybody to decide my destiny. So I've been actively made a place in films for me where my wrinkles will not be frowned upon, and I can have a dignified career even when I am, you know, I can work, and not by injecting myself or pulling myself with threads, you know. I can simply work the way a man works. At the same time, I also would want to be in a profession which is not so identified with my sex as an individual. Like, you know, I think an actress's job is so identified, but a director's job, a writer's job, a music director's job is not so identified. It's, you know, you could be a man, woman, young, old, doesn't matter. I like that space. I don't want to be in a place where my sex is a lot more important than my inner world or my intellect or my intelligence. कंगना जी, अश्वनी जी, कंगना जी यहाँ, कंगना जी जब तक मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारा माइक ही नहीं ठीक हो रहा है. अश्वनी जी, मेरा सवाल आपसे है. मेरा नाम नसीम खान, मैं यहाँ पे मैं आपकी पिछली फिल्मों की बात करूँ, अगर बरेली की बर्फी की बात करूँ या मैं नीलबटे सन्नाटा की बात करूँ, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो एक हिंदुस्तान है उसको दिखाने की कोशिश करती हैं और लोग रिलेट भी करते हैं. क्या आप मानती हैं एज ए डायरेक्टर कि अब ये वो वक्त है जहाँ पे मिडिल क्लास कहानियाँ कहा जाना बहुत ज़रूरी है और लोग उसको सराह भी रहे हैं? एक तो ये, और कंगना ने बातचीत के दौरान कहा कि ये आपकी बायोपिक लगती है. मुझे खुद को भी लगता है. आपके अगर सफ़र को देखा जाए एज अ डायरेक्टर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि द मिडिल इंडिया, द मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया इज़ द न्यू एज इंडिया. वी आर द वंस, हम लोग की फैमिलीज जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको वो सब नहीं मिला जो हमको देना चाहते थे, और हमको इतना सारा मिल गया कि ज़ाराज और H&M's हमारे ऑनलाइन में आ गया. हमको पिज़्ज़ा जब चाहिए थे मिल गया था. तो जब वो सब होता है तो फिर हम लोग को खिचड़ी चाहिए, रात को दाल चावल खाना है हम लोग को, तो हम घूमते पूरी दुनिया, पर फिर रात को आके चाहिए कि हमको अपना खिचड़ी तो खा ही लेंगे हम. This is the aspiration. At one point of time we wanted to be like the West, but now we just want to be unapologetically Indian. And we have no qualms about it. We have no qualms to say that we are Indians. And जब हम फिल्में बनाते हैं which is truly Indian and that goes to the world,
तो वो हमारी कल्चर देखते हैं। और जितने भी लोग बाहर देखते हैं वो कौन है, वो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, पर उनको अपना देश अभी भी बहुत प्यारा है। तो वो जो कनेक्शन है, instead of aping the West, if we be what we are, and it's okay to show our colors, it's okay to show our open doors, it is okay to show sharing food, it is okay. We don't have to feel कि ये हम नहीं दिखा सकते फिल्म में। जैसे कि ये she works in the railways and he is an engineer, and for the first time in Indian cinema we are going to show a railway yard, जो हमने कभी लाइफ में नहीं दिखाई है पूरी सिनेमा में, कभी नहीं। You're going to see all that, and that's our country. And why should we feel shy about talking about our music, our culture, our characters? Answering your second question, सबको ऐसा लग रहा है by the time I think the film ended and सब लोग ने जब देखी तो बोले कि कहाँ तो तुम्हारी झलक है। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी-कभी गुस्से में आदि को अरू बोल देती थी, क्योंकि सेम एज ग्रुप है, माई ट्विन किड्स ऑल्सो 9 years old, पर गुस्से में बोलती थी, प्यार से कभी नहीं बोलती थी। बट येस, when I was pregnant and after my children got delivered, I made Nilbate Sannata, and then after that I wanted to make the Tamil film of Nilbate Sannata. And that's the time Nitesh told me that you've got an opportunity to make a Tamil film. You are a South Indian. Please go ahead and make it. At that point of time, Nitesh was doing the last schedule of Dangal, and I was shooting Nilbate Sannata, Tamil version. So yes, it's about not who's taking a woman's. मेरे को बहुत बार ऐसा पूछा गया है, नीलपटी सन्नाटा के टाइम पे मेरे को बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर आप पूरा टाइम काम करती हो तो होमवर्क कौन कराता है। आई थिंक वो डेफिनेशन चेंज हो गया है अभी। अगर मियाँ बीवी साथ में काम करें, डुअल इनकम वाला जनरेशन है ये, मियाँ बीवी साथ में काम करेंगे तो कोई एक तो होमवर्क ले ही लेगा अपने आप। सो दैट्स व्हाट इट इज। कंगना हियर, आपको बहुत बहुत मुबारक इस ट्रेलर की। बहुत बहुत मुबारक, बहुत इंप्रेसिव ट्रेलर है। जब जब आप स्क्रीन पे आते हैं, आपकी मासूमियत, आपका वो मिडिल क्लास जो किरदार है वो दिखता है कि हाँ एक माँ इसी तरह से बिहेव करेगी जब बच्चा स्कूल जा रहा होगा कि भैया आराम से चलाना। जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा, कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? आई थिंक मैंने जब भी ज़िंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था, एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ। सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माय लाइफ। तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज where I am today for anything. कोई भी पंगा चलेगा। Kangana, your chemistry with Jassi is absolutely endearing to watch on screen. Slightly towards your right here, if you can see me. Yeah, ऊपर। ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर you kick Jassi. My question is कितने retakes लेने पड़े थे उसके लिए? उसके लिए मैंने कुछ जान के भी कुछ retakes किए थे, because जस्सी जो है बहुत खुश रहता है, और मैंने सोचा इसकी ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है तो इसको थोड़ा सा तो टेंशन दी जाए। बट सेट में बहुत सारे लोगों ने उसको एक्चुअली पूछा, और जब ट्रेलर हम सब देख रहे थे सब लोग ने पूछा जस्सी को सच्ची में लगी क्या बहुत? अश्विनी मैम ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे जब उसको किक। जस्सी, बट आज तक किसी ने पूछा नहीं, सो यू रियली हैव टू टेल योर फ्रेंड्स दैट सच्ची में लगा कि सच्ची में लगा। और वो जो बात में हॉट वाटर का रखा हुआ है वो रियल का रखा हुआ है, और जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारा वो रियल है, क्योंकि वो इतनी जोर से पड़ी थी, और एक नहीं पड़ी, ट्रेलर में 2 दिखी हैं, वैसे 15-16 पड़ी थी मेरे। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैड शॉट दिस आल्सो इन द नाइट। एक्चुअली नींद में थे दोनों, सो इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट। No, please, sir. Not at all. See, I think especially all the men sitting in the room, I think we all know it. We are the lesser sex, absolutely. I think the future of India rests with women, rests with young girls, and I think that's why these films are really, really important. And I think this is great testimony to women. Thank you, sir.
Shankar and Shankar ji has made the music. Shankar Ehsaan Loy has made the music for the film, and personally for me, till the time the whole album comes out. But personally for me, I feel that we are a little away from what is happening right now in music scene. So we have gone more softer. We have gone back to the olden kind of days of music. So hopefully you guys will like it if, I mean, whenever it comes out. Hi Kangna and hi Ashwini. This is Ravi from ABP News. Yeah. Towards your right. अगर इंडिया की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स को ग्लोरीफाई नहीं करते, ये इतिहास रहा है. बाकी सारे स्पोर्ट्स नेग्लेक्टेड रहे हैं. कबड्डी के माध्यम से क्या आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ भी उभर के आएगी, उसे हाईलाइट किया जाएगा? हालांकि अब कबड्डी टीवी पे बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे हैं और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स जो हैं हमेशा से नेग्लेक्टेड रहे हैं क्योंकि ग्लैमर ज़्यादा क्रिकेट में ही है. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I can take it. Yeah. No, I don't think उसमें ज़्यादा ग्लैमर है क्रिकेट में. Actually वो ब्रिटिश ने इतना ग्लोरीफाई, became a symbol of your status. It became like if you're posh you play cricket. Otherwise कबड्डी is mentioned, हमारे महाभारत में कबड्डी का लेख है जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा महाराजा, the coolest dudes of those days when they used to catch up, they used to play kabaddi. Kabaddi was the most glamorous sport, and also it was the most popular sport because आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए होता है और आपको 2 टीम चाहिए होती है. सो हम लोग कहीं ना कहीं जब हम लोगों से भारतीयता ही दूर चली गई तो जो हमारा था और जो हमारे लिए बहुत करीब था, बहुत वो था, तो सभी हमसे छिन गया. बट ये टाइम है फिर से रिवाइव करने का. जो स्पोर्ट्स हमारे विलेजेस में भी जितनी कबड्डी फेमस है और जितना आई थिंक इट्स अ वेरी एंगेजिंग स्पोर्ट एंड वेरी स्पोर्ट वेयर यू नो यू आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड. सो आई थिंक it's also just to add to your point, actually हम सब ने कबड्डी स्कूल में खेला है. We all in our own world has played kabaddi, whether it was a sport pakda pakdi, kabaddi, lagori, all these games were there. And even today, which I didn't know about, but even today, kabaddi is played during festivals. Like women in saris, if you go onto YouTube, आप देखोगे like women in saris are playing kabaddi. So, you, like she said, you don't need anything much, you just need the strength and the valor. And it's also a very team game. आप एक के साथ एक के पीछे भाग रहे हो और आपको चाहिए कि वो जीते. एंड समवेयर इट इज रिलेटेड टू अ फिल्म आल्सो. एक सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है. कंगना, आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? Well, मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, but I'll try to say something which is not drifting from the event. I think जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना, आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3 से 4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं. तो what gives you the right to burn buses and trains and to create ruckus in the country? That should be looked into, क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है. और जो देश की हालत है, जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस. एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल this is my very personal opinion, we are still hung on to pre-independence era. जब हमारा देश स्वतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी. मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी बीइंग कंगना रनौत, यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, 2 फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो. यू हैव टू गिव मी दिस मच, आई एम हियर ऑन माई ओन मेरिट. तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पे उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता. यू कांट बी अ सोर लूजर. So, like I said, there is a lot to say, but it's better if we don't drift into a different direction and we stay where we are. Jesse, here at your left. My question to you is कि
आप जो एक ट्रेलर में आप एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए वो कर रहे हैं। जो आजकल के हस्बैंड्स हैं या जो आजकल का एरा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड व्हाट मेड यू से अ येस टू दिस फिल्म आफ्टर हैप्पी फिर भाग जाएगी? मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ की है। मतलब मैक्सिमम जितने हमारे पंजाब में जितनी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि पंजाब में खास करके ऐसा होता है कि एक जना घर पे कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं। जैसे जो फार्मर्स हैं उनके खास करके ऐसा रहता है, तो उनकी स्टोरी है। तो मुझे बहुत सारी चीज जगह पे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये फिल्म बहुत ख़ास है मेरे लिए। मेरी दूसरी फिल्म थी वैसे, पहले हैप्पी आई थी, और जब मुझे बताई गई कि ये स्टोरी है, पहले तो मुझे अश्विनी मैम के लिए बताया गया, तो अश्विनी मैम का मुझे पता था। तो बट जब मुझे स्टोरी का पता चला तो मुझे लगा कि ये स्टोरी ऐसी है जिसमें एक अपनापन है। जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ से आया हूँ, जहाँ से आया हूँ, जहाँ की ये स्टोरी है, मैं शायद इसमें अपना 100% दे सकता हूँ। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म की, और मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक्स टू अश्विनी मैम, सर और सबका जिन्होंने मुझे इस फिल्म में सपोर्ट किया काम करने के लिए। Ashwini, hi. Kangana ji, I just want to add something, okay? Because this is the first time it has happened to me. During the course of the film, सबको story पता है. During the course of the film, the first person who actually said something which really touched my heart was my editor. बल्लू जी, आप हो किधर? बल्लू जी ने बोला, अश्विनी जी आपने ये क्या कर दिया, अभी मुझे मेरी बीवी को फेस करना पड़ेगा। और मैं बोलने वाला हूँ यार तू जा काम पे वापस। वो she was a CS and और अब मैं बोलूँगा तो बहुत गाली खाऊंगा। अब वो बोल रही कि अब मैं अपनी मर्जी से करूँगी, तुम जब बोलना था तब तो तुमने अलाउ नहीं किया मुझे, you know. So he's a part of us, but still things changed. My my background score director, he's not here, Sanchit said that, Ashwini ji, this is my mom's story. I just keep seeing my mom in Kangana ji. It's because she also was from Punjab and she also moved to Canada, you know, so I couldn't do anything. And today when I see her, I feel very bad. So my marketing person, Anoop, are you here? Yeah, Anoop told me that he sees his mother. So basically, for a son, he sees their mother. For a husband who's like just working, wants to make sure that they have co-parenting now. Yeah, there's a lot more. I can't reveal everything right now, so you have to wait and watch the film. But yeah, it's happening. Yeah, it's happening. कंगना जी, आपके राइट में ऐसे इंडस्ट्री में तो आपने जिससे भी पंगा लिया, ऐसे दिल खोल कर पंगा लिया, सो ऐसे कोई मेमोरेबल पंगा जो आपको पूरी लाइफ भर याद रहेगा कि हाँ इनसे पंगा लेना काफ़ी मेमोरेबल रहा मेरे लिए? मेमोरेबल पंगा तो आप है ना, मेमोरेबल पंगा अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए। Well, I think सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया हो। आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं, सबके सब कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं। सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं, और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं। तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके जरिए पड़ेगी, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम। तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। अश्विनी जी, एक आपके राइट में मैं ही सिनेमा घरों में एक साथ में फिल्म आने वाली है, स्ट्रीट डांसर एंड आपकी पंगा होने वाला है। सो आप बताइए, आप लोग इस पंगे के लिए कितना रेडी हैं? श्रद्धा मेरी मतलब शी इज़ रियली क्लोज टू मी, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक आवर डॉटर। अब भी नितेश की फिल्म में उसने काम किया, शी इज़ अ फ्रेंड। वरुण इज़ अ रियली डियर फ्रेंड। आई थिंक इस ज़माने में वी कांट कम्पीट विद ईच अदर, वी ऑल आर को एग्जिस्टिंग, और हम सबकी फिल्मों के लिए वी जस्ट हैव टू pray and make sure that our industry functions. So all films have to do well. नहीं तो बॉक्स ऑफिस नहीं चलेगी तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे हमारे लिए? So every film has to do well, and जितने थिएटर्स हैं हमारे, अगर कोई और ज़्यादा थिएटर्स बन जाए हमारे देश में तो बहुत अच्छा होगा, चाइना की तरह विजय, ताकि हर फिल्म एक नई सिंगल रिलीज़ मिले। अब वो ज़माना गया, अब सिंगल रिलीज़ का कोई मौका नहीं है, पर जब दो फिल्में साथ में आती है तो वी शुड जस्ट encourage and rejoice each other's films. Ashwini, hi. आपका टेक
दोनों I फिल्में think साथ- I am honestly I am just very happy that they are both not of the same nature. कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है. सो विच इज़ kind of a relief. I would love to have a solo release, to be honest. Magar, like Ashwini ji said, this is now a far-fetched dream. Ashwini, hi. This is to your right. This is Mayur here from Beyond Bollywood. Yeah, hi. Congratulations on the wonderful trailer, and I think special congratulations to little Adi here. My question to you is, you spoke at the beginning that this is a film that resonates with you. So I wonder, with regards to the character of Mr. Jassi Gill, is there a bit of Mr. Nitesh Tiwari in him as well? No. Why would And- that be? It's a very personal question, but unfortunately, no. I think he's a very quiet person. All of you know him. He's pretty quiet and reserved, and there are no surprises in our lives. But yeah, in terms of support, in terms of, see, my face is glowing right now. So in terms of support, in terms of the silent push, which we always need, he is not here today. The reason he's not here today is because he said that, you know, the moment I come and sit there in the audience, the camera will shift towards that, is because this is the kind of society we live in. So you please enjoy that whole thing, and I'm not going to be there. I'll meet you in the night. And it's important that we as journalists and we as media people really push more and more women and your family, your wives, your daughters, and also people like us, is because of y'all. And if I'm always termed as some so-and-so's wife who made a film, I made the best film last year, 2 years back, and I was still called as Nitesh Tiwari's wife. If you guys change that, everything else will change. So it comes from you all, and then I do not have to keep saying, you know what, I'm an individual, can my name just be the way I am? So yes, it's all about you, and if you give all of you all together, from the time you just don't become someone's daughter, someone's wife, Mrs. Q, I think things will change, you know. I'll just give you a simple example. Day before yesterday, we had to go and change our electricity bill. Name on our electricity bill. So Nitesh had gone, he had taken my sign and everything. And she said, oh, madam ne change nahi kiya surname. So he said, nahi kiya. So, you know, these are the things which sometimes troubles me, but it's fine. Everyone else, we all are, I'm sure there are a lot of women mothers out here, and they all feel the same, so it's okay. Guys, sorry, last two questions, please. इस फिल्म में रीचा चड्ढा भी है और आप दोनों ऐसी पर्सनालिटी हो जो इंडस्ट्री में ऑनेस्ट ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, तो आप दोनों कितने बॉन्ड किए सेट पे और किस तरह से ऑनेस्ट ओपिनियंस इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया एक दूसरे को? देखिए, हर एक इंसान सबके साथ एक तो होता नहीं है. यू नो, लाइक यू आर डिफरेंट व्हेन यू आर हैविंग अ डिनर विद योर फैमिली, विद योर मदर, विद योर सिस्टर, विद योर नेफ्यू. हर एक के लिए एक अलग आई थिंक इंसान को भाव प्रदर्शन करना पड़ता है. तो यस, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस, बट हम लोग जाते ही सबसे पहले ये नहीं तुम अपना ओपिनियन बताओ मैं अपना बताती हूँ. वी डोंट वर्क लाइक दैट, यू नो. इट्स ओके, शी हैज़ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन. वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डायट्स, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट टीज, एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, एंड वी यूज्ड टू हैव ग्रेट टाइम knowing that the other person definitely doesn't agree with the same ideologies, which is fine. I mean, people don't have to be alike. Like I said, why we should not have opposition? We must have people opposing our beliefs, our ideologies. That is the only way to grow, and it is a very healthy balance. But the problem is only when, like I said, you know, when people start to be nasty, troll, or to start to get violent. That is the only problem. Kangana ji, Kangana ji, your center Rahul here from the Filmi Charcha. So we will take a question for Shankar sir. Yeah, this way. शंकर जी, आपका म्यूजिक अभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन इसका म्यूजिक तैयार करने के लिए कितने पंगे लेने पड़े आपको? अश्विनी जी के साथ it's our first film that we are doing, तो बहुत मज़ा आया. And of course with Kangana, it's the second film after Manikarnika, and we had a great time. And you know, each and every song, you know, for a change, I think getting directors and, you know, actors like this in the film, हम लोगों का advantage ये हो जाता है कि we are allowed to make original songs. हम लोगों को अपना composition अपने film में डालने का एक मौका मिल रहा है, which is, you know, nowadays very rare. You just see only songs that are remixed and they are put in. Every film has got a song which is remixed and put. क्यों
हम लोग मतलब देयर आर सो मेनी टैलेंटेड कंपोजर्स, उनको मौका दिया जाता है. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विजय एंड थैंक यू द एंटायर फॉक्स टीम फॉर अलाउिंग अस टू कंपोज ओरिजिनल म्यूजिक. और अश्विनी जो है, शी इज़ अ लवर ऑफ म्यूजिक, शी लव्स इंडियन फ्लेवर. सो हम लोगों ने एक बहुत ही इंडियन सोल को रखा है, एंड वी केप्ट द म्यूजिक वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ हार्ट एंड सोल इनटू इट. कंगना जी, मेरा सवाल आपसे है यहाँ पे आरती सक्सेना. आपका हमेशा डायरेक्टरों के साथ है ना खट्टा मीठा रिश्ता रहा है. तो लाइक जैसे मणिकर्णिका में खट्टा रिश्ता था, अश्विनी जी से मीठा रिश्ता है. तो डायरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने कैरियर के लिए? सी जब एक एक्टर सेट पे जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी सपना यही होता है कि मेरे डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो, एंड माई डायरेक्टर शुड शाइन द मोस्ट, एंड माई डायरेक्टर शुड डिलीवर द फिल्म ऑफ द ईयर, एंड दे शुड गेट एवरीथिंग दैट दे कैन. ये आपका सपना होता है. लेकिन अब कोई अगर फिल्म छोड़ के चले जाए, उसको अनाथ ही कर जाए, तो डेफिनेटली यू नो आई एम नॉट समबडी जो कि मैदान से पीठ दिखा के निकल जाए, यू नो ना. सो आई टेक द चार्ज. But at the same time, I have to say that with Ashwini ma'am and you know, working with a woman director, one thing is and Vijay sir will also agree with me, Rucha will also agree with me, that she's so organized, she's so competent, she's so organized. It is a dream of any actor. Trust me, no actor would want to go to the set and know that their director is lacking. I can assure you. So it is amazing to be working with directors who give you the film that they promised. She also made me. Kangana ji, your center. Kangana ji. I have to tell you all this one thing because it's a nice, funny story. Because with what happens with her is that so many people keep judging her that maybe क्या पता नहीं क्या कर देती. She sets the set on fire or something. ऐसा कुछ भी नहीं होता. Please, I have to tell you all very openly as a director, because no one would. Everyone just will keep telling her ये करती है वो करती है, पर कोई अच्छा बोलता ही नहीं है. I have to be the one who has to pioneer this whole thing and tell the good things about her. Okay, so we were shooting in, and I need that little time is because today I really feel that I need to clear out a lot of doubts, and we are going to have behind the scenes for this film. You all, one second. आपको कबड्डी खिलाई थी इन्होंने. Exactly. हाँ, so मैं आपको बताती हूँ. तो रोज सुबह हम मेरा एक आदत है कि रोज सुबह मैं जाती हूँ और मुझे देखना है कि कंगना क्या कर रही है सेट अपनी वैनिटी में. जैसे कि वैनिटी पे बैठी बदी हमेशा सोता रहता था, तो इसके वैनिटी में ये जल्दी टाइम पे आ जाएगी. और पहले शी विल बी हियरिंग सम स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड शी विल बी मेडिटेटिंग और समथिंग. मैं जाके फोरहेड पे किस देती थी रोज सुबह. एक दो दिन शी डिडंट रियलाइज कि क्या हो रहा है. बोला कि कैसी ये सब ठीक है, like full motherly treatment. And after 2-3 days मेरा सुबह सुबह शॉट होता था, तो I couldn't go. So one day she actually told her staff or someone, आज अश्विनी आए क्यों नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं एक्चुअली इसका मेरा वर्जन ये है कि आप सो रहे हैं अपने कमरे में और आपका डायरेक्टर जोर जोर से 6 बजे दरवाजा उठो उठो मेरे पास समोसे हैं. एंड आई एम लाइक हेलो, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस. यू नो यू आर कमिंग इनटू माय रूम, आई एम इन पजामास, और सुबह सुबह 6 बजे आपको समोसा खिला के चले जाए. And then on the set, she's kissing me, she's sitting in my lap. I said, you behave yourself because you're a director. So, but you made me sit on the lap. The reason being because I'm a little meticulous on my work, so all the short breakdowns were ready. This is one person. See, I'm very used to people being very, like threatened by me or my presence. So I'm used to just walking into a room and everyone. I'm not used to directors coming and kissing me and hugging me and treating me like a kid. So I'm like, oh, okay. So it was nice. It was very, she's, very disarming as a person. But also, like, I think that kind of unassuming personality that she has, it just made me feel very comfortable. And at the same time, like, she is, even people calling her and telling her, oh, you are finished, your film is sabotaged, and you have, like, people are calling her and threatening her, and she's coming and hugging me tight, and like people are saying this, and I'm like, aren't you scared? What is the matter with you? No, but then I see, every relationship is different, and it's like a marriage. आपको किसी के साथ जमता है, नहीं जमता है, आप किसी के साथ टिकते हो, नहीं टिकते हो तो डिवोर्स हो जाता है, फिर आगे जाते हो आप. रिलेशनशिप वो होता है, फ्रेंडशिप में भी वो होता है, फ्रेंड्स नहीं जाते हैं, लाइक झगड़े नहीं होते हैं. सो एवरी रिलेशनशिप इज लाइक दैट फॉर मी. सो जस्ट कमिंग टू द कॉमिक पार्ट, सो आई यूज टू लाइक, क्योंकि माई शॉर्ट ब्रेक डाउन्स वर रेडी, सो आई ऑलवेज यूज टू बी रेडी, एंड आई यूज टू जस्ट टेल दैट द कैमरा इज गोइंग टू बी मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर,
And then, of course, he's a brilliant actor. He understands things like really well. And the camaraderie is really good. And I used to sit and watch. So this happened for quite some time till we went to start doing the running scenes and all in the morning. So 5 बजे सुबह sunrise shot और हमने सब prep कर दिया, line mark कर दिया, मेरी DOP जय है इधर, तो सब हमने mark कर दिया. And then she comes, I said, hey, now you have to just run from here to there. So she says, अच्छा, but how do I run? So I said, वैसे तुम run करते हो, वैसे भी you are a mother, you're just whatever, so run however you want to. Then you have to show me to run. I said, Kangna, don't make me do this at 5 o'clock in the morning. कंगना जी, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. Thank you. आपने एक कहावत सुना होगा कि पंगा लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का. तो आपने आज तक जितने भी पंगे लिए हैं वो आपके फेवर में रहे हैं. तो लोगों के गाइडलाइन के लिए एक सवाल था कि पंगे लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. आई थिंक पंगे लेने से पहले सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी चाहिए कि आप जो भी कहें, आप चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, पर अगर आप सच कहें, क्योंकि सब बातें फिर मतलब जैसे कहते हैं रायता तो फैलने ही वाला है. सो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट लाई अबाउट एनीथिंग. दैट इज द फर्स्ट एंड मैं आपको कह रही हूँ कि people are very accepting of whoever you are, but one thing they don't accept is a liar, you know. So I think whoever you are, I've always been open and I've always been very clear that, you know, but I've never ever you know, said things which I don't mean. वही एक उसी को लेके चलो, उसी को पकड़ के चलो. And then I think जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि सच को प्रूव होने में टाइम लगता है, मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता. Okay, guys, last question, please. Okay, guys. We're going to take 2 more questions. So can I? Okay, so can we just? हाँ. अश्विनी जी. एक मिनट. We're taking for Shankar. शंकर सर, एक सवाल आपसे है मेरा कि आज देख रहे हैं जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह हैं, सिर्फ जिनके नाम हैं उन्हें लिरिसिस्ट को अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं. जिनके नाम हैं, जो नए लिरिसिस्ट इंडस्ट्री में निकल के आ रहे हैं, उनके सॉन्ग्स को खुद राइटर मतलब पिक्चर से हटवा रहे हैं. क्या कोई टैलेंटेड लिरिसिस्ट आपके पास आए तो क्या आप उसको चांस देंगे, अगर उसके पास रियल में कोई अच्छी चीज़ है तो? 100% हम लोग देंगे, देते ही हैं और देते रहेंगे. सर, एक बंदा है आपको 3 साल से कॉल कर रहा है. हाँ. अच्छा, आप हो? चलो सर, अगले प्रोजेक्ट में देख लेंगे. ओके, आपकी मीटिंग करवाएंगे बाद में. ओके, कंगना जी, आखिरी सवाल है मेरा आपके राइट में. ओके, कैन आई जस्ट? अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे. Okay, guys, last 3 questions and I'm going to be. Hang on. I'm going to decide, guys. So the lady there. कंगना जी, आखिरी मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि you know रिलेशनशिप से याद. 1 मिनट भैया, 1 मिनट. अश्विनी जी, सवाल आपसे है. आप और नीतीश जी दोनों ही देसी फिल्में बनाते हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म दोनों ने बनाई. तो जो आप लोगों का मेल है, आप दक्षिण को बिलोंग करती हैं और वो नॉर्थ को बिलोंग करते हैं. आपकी तीनों फिल्में नॉर्थ की हैं, तो कितना हेल्प उनसे आपको मिला और आपका कितना, क्योंकि दोनों एक देश के अलग अलग कोने हैं, तो आपका टैलेंट उनको कितना हेल्प करता है और आपका? जैसे 2 डॉक्टर्स घर पे रहते तो सर्जरी के बारे में तो बात करते ही है ना, तो बस हमारा भी वही है. हम 2 डायरेक्टर्स हैं घर पे, पर हम ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं. मेरी टैलेंट आर्ट डायरेक्शन में बहुत है, उनकी टैलेंट राइटिंग में है. हमारा डायरेक्शन बहुत अलग है. हमारा जो एंड पॉइंट है वो सेम है, पर जो जिस तरह से हम डायरेक्ट करते हैं वो बहुत डिफरेंट है. पर वो भाषा के लेवल पे, क्योंकि वो लिखते भी हैं और आपकी तो फिल्में भी लिखते हैं. भाषा के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं हिंदुस्तानी हूँ फर्स्ट, सो आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, all kinds of languages, even English. So guys, on that terrific note, I think will you please? I'm going to take the last question now, but give them a big round of applause for this. Okay, the last. We'll take 2 questions. Okay, कंगना जी, मेरा एक आखिरी सवाल है. You know, हम ऐसा माने कि 2020 में ऐसे आप शादी का पंगा लेने वाली हैं? You know, ये जब से मुझे चाहिए कि इसकी शादी हो जाए. मेरी शादी करवाने के चक्कर में है. हाँ. But honestly मुझे हमेशा लगा था सारी मैंने ढूंढ ली है, वेन्यू तैयार कर ली है, बस लड़का ढूंढना बाकी है. How much she embarrasses me, but no.
मैं एक्चुअल में मुझे हमेशा लगता था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी इन अ मैरिज वेयर यू नो यू कैन हैव अ इक्वल कंपेनियनशिप, बट जब से मैंने अश्विनी जी की मैरिज देखी है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैरिज लाइक दैट इज़ पॉसिबल. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ नितेश सर, हाउ ही सपोर्ट्स हर, एंड इनकी जो क्रिएटिव कोलैबोरेशन है एंड यू नो द वे दे आर टुगेदर एंड हाउ सपोर्टिंग ही इज़ ऑफ हर एंड हाउ you know, like being a woman, being a working woman, she's never lost the feminine side of her, you know, like the beautiful side of her, because women are, when you're leading a crew of 100 people, kahin na kahin you tend to lose the beautiful gentle side of yours, kyunki log to kitne dheet hote hain, but in her case she has not. So big round of applause for her. Kangana, what qualities are you looking, will you be looking, Kangana, this side towards your right, last question. What qualities are you looking into for a husband? Banta hai sawal. I think I need somebody who's more intelligent than me, who's more beautiful than me, and more talented than me. Okay, thank you, Okay, guys, thank you. I think We'll take now the we photos can now. make a